Hello students, welcome to my channel Mind Target 100%. I think all of you must have seen my last videos and go through that video, point out what are the important points, note down, try to learn and remember because regular practice is required for the examination. Practice makes a man perfect. Anyway, in the last class I completed resolution of vector. And somewhat I had given one example, walking of a man. So today's topic is applications of resolution of vector. What are the applications? Walking of a man on the ground is an example of resolution of vector. Okay, then it is easier to pull a long roller than to push it. Another one is, you can say, that motion of an body, either it is moving up or down. Motion means acceleration, and work done by a body in an inclined plane. Bending of cyclists, banking of roads. You can take number of examples where that component, that vector is resolved into two components. That means you must know. I am writing that is applications of resolution of a vector. I have already told to point out, suppose this is x-axis, this is origin, this is x-axis and this is y-axis. If I am taking this one is r, so it is r cos theta when if it is makes angle theta along the x-axis. If here is theta, when it is here theta, so it is r cos theta, it is r sin theta. Okay, one is horizontal axis, horizontal component, it is vertical axis, vertical component. But if you are taking this one is here theta with respect to this one, it becomes r cos theta. ये बहुत important है, इसको ध्यान रखना. So similarly, you can find the number of examples. So let us discuss about the lawn roller. लॉन रोलर, आई थिंक एवरीबॉडी वेरी मच फैमिलियर विथ द लॉन रोलर. सिलेंडर भी देखे हो, सिलेंडर का हर पोर्शन वो सर्कल है ना. क्रॉस सेक्शनल व्यू यू टेक, कंसिडर द क्रॉस सेक्शनल व्यू. सो लॉन रोलर, सपोज ये ग्राउंड हुआ, आप रखे हो, ये सेंटर हुआ, यहीं से वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग हुआ W. दिस इज द हॉरिजॉन्टल पार्ट, दिस इज द वर्टिकल, ये रिजल्टेंट. Suppose this one is F, it produces F cos theta because angle theta is inclined along x axis. It is y axis, so it is F sin theta. Y axis F sin theta. What you are observing? What you are observing? There are two cases. Question is why it is easier to पुल ए लॉन रोलर. पुल मतलब टूवर्ड्स, पुश मतलब धक्का देना, अवे फ्रॉम यू. याद रखना, पुश मतलब अवे फ्रॉम यू. किसी को धक्का मारते हैं वो पुशिंग हुआ, और पुली मतलब अपनी तरफ से. तो ये हुआ, देखो ये जो हुआ इसका, तो उसमें आप देखोगे तो ये हो रहा है वेट ऑफ द बॉडी उसका ज़्यादा है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्टिंग कर रहा है. एफ साइन थीटा वर्टिकली अपवर्ड और एफ कॉस थीटा. सब जगह में जब आप रिजोल्यूशन, हम लोग पढ़ रहे हैं रिजोल्यूशन एप्लीकेशन और रिजोल्यूशन वेक्टर, यहाँ क्या हो रहा है ना, W माइनस एफ साइन थीटा नेट इफेक्टिव फोर्स, नेट इफेक्टिव फोर्स व नेट इफेक्टिव वेट, ये कब हो रहा है? इन पुलिंग. ओके, W weight of the body, F force is resolved into two components. Okay, so but in case of pushing, suppose this one you are keeping again. Okay, but here you are observing that force is in this direction, that force is here. Okay, here the direction, here is one vector, here is one vector. So it's the case of a law parallelogram. Here is same thing. It is suppose one vector, it is another vector, that force that makes angle theta here. So it is F cos theta.
नाउ व्हाट हैपन्स, आप जब ये पुशिंग करते हो, इन पुशिंग व्हाट हैपन्स दैट एफ साइन थीटा, ये एफ रिजल्ट हुआ एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। ओके, बट हियर ऑलरेडी वेट है, यहाँ क्या देख रहा है, वेट जो उसका वो बॉडी का वेट, सब टाइम में वेट ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकल डाउनवर्ड, तो एक्टिंग वर्टिकल डाउनवर्ड, ये एक फोर्स हुआ वो हो गया कितना ना W प्लस एफ साइन थीटा। यहाँ नेट इफेक्टिव वेट इतना हुआ, तो ज़्यादा फोर्स किस में लगा, पुशिंग में। अरे यहाँ माइनस हो रहा है, देखो यहाँ प्लस हो रहा है, तो कम फोर्स किस में लगा, इसमें लगा, सो इट इज इजियर। सो इन केस ऑफ एनी इंक्लाइन प्लेन, सपोज इट इज ए इंक्लाइन प्लेन, आप कहीं बाइक में जा रहे हो, किसी जगह में जा रहे हो गाड़ी में, तो ये हो गया सपोज ABC। देखो वेक्टर रिजोल्यूशन को बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे हुआ, इंक्लाइन प्लेन में एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, तो ऑब्जेक्ट का सेंटर जो सेंटर हुआ ये ऐसे हुआ, तो ये जो सेंटर हुआ ये mg हुआ, तो ये mg हुआ, तो यहाँ थीटा हुआ, ये mg cos थीटा हो गया, यहाँ एक हो गया mg cos थीटा, तो ये साइड में कितना हो गया ना mg sin थीटा। ओके, बट इसको बैलेंस कौन कर रहा है, देखो r कौन है, यहाँ जितना ऑब्जेक्ट रखा हुआ ये हो गया वेट डाउनवर्ड हुआ, बट अर्थ एक फोर्स दे रहा है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, सो r को बैलेंस किया mg cos थीटा, तो r बैलेंस हुआ mg cos थीटा। बॉडी कहाँ जा रहे हैं, यहाँ आ रहा है, अगर यहाँ आ रहा है एक्सेलरेशन मूविंग डाउन, तो यहाँ एक फोर्स हुआ सपोज F, लेकिन उस टाइम में बॉडी का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से बॉडी का मोशन ज़्यादा होगा तो बॉडी एक्सेलरेटेड होगा, नहीं तो नहीं जाएगा। सपोज हम इसको खींच रहे हैं, मेरा फोर्स कम हुआ, इसका वेट ज़्यादा हो गया, बॉडी आगे नहीं आएगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन मोशन ऑफ द बॉडी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देन बॉडी स्लाइड डाउन। देखो यहाँ देखो पूरा इजी है, ये mg हुआ, यहाँ थीटा हुआ mg cos थीटा mg sin थीटा। देखो यहाँ क्या हुआ ना, यहाँ हो गया F इजिकल टू ओके mg sin थीटा माइनस F, ये एक्सटर्नल फोर्स, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बॉडी का मास m ऑफ द बॉडी, m मास ऑफ द बॉडी, r नॉर्मल रिएक्शन। देखो क्या हुआ, यहीं पर देख लो, ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ, इसको कैसे करेंगे ना, F इजिकल टू ma mg sin थीटा। देखो mg sin थीटा हम यहाँ माइनस क्यों किए, ये दोनों फोर्स mg sin थीटा प्लस F इजिकल टू F, इधर साइड जो आ रहा है दो फोर्स लागू हो रहा है, इसीलिए तुम नीचे आना चाहते हो तो नीचे आ जाएंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हुआ। अगर ऊपर जाते हो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, सो हियर हुआ। तो यहाँ क्या हो गया, ये एफ कितना हुआ ना, म्यू आर, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। सो अभी कितना हुआ ना, mg sin थीटा माइनस म्यू आर हो गया कितना, mg cos थीटा। देखो कितना आया, दोनों में mg है, तो यहाँ mg कर दो, mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ओके, अभी क्या होगा, यहाँ m है, m काट दिए, तो कितना मिला, a इज इक्वल टू g होल sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। इफ यू नो थीटा वैल्यू, म्यू वैल्यू, g you know, you can find the acceleration of a body, either it is moving up or moving down, only change is force of friction will change. Okay, so in this way you have to resolve a vector into rectangular components by this process. Okay, thank you.